Hi, this is Dr. Deepa Rawat, and I welcome you with one another aphorism to my YouTube channel. I appreciate you all and I thank you all very, very much that you are giving your precious time to me and listening to me and giving your time to my lectures. I hope you are understanding. I am trying to simplify the hard and difficult words of organon. So let's talk about the aphorism which is very very crucial and very very important. That is aphorism number 1. ये हर प्रोफेसर का हर एग्जामिनर का फेवरेट अफोरिज्म होता है वाइवा में कि कोट करके बताओ पूरा अफोरिज्म. तो यूजुअली क्या होता है कि फर्स्ट डे ऑफ ऑर्गेनन का जो लेक्चर होता है उसमें हमें फर्स्ट अफोरिज्म को बोल दिया जाता है कि इसको रटना है अच्छे से. और बहुत छोटा अफोरिज्म है तो सभी इसको रट भी लेते हैं, याद कर लेते हैं. और फेवरेट टॉपिक होता है एग्जामिनर्स का. एग्ज़ाम में भी ये 5 मार्क्स का इस पर शॉर्ट नोट आ जाता है. याद तो कर लेते हैं पर समझ नहीं आता है कि एग्ज़ाम में क्या लिखना है. तो लेट्स टॉक अबाउट अफोरिज्म नंबर 1 एंड आई विल बी गिविंग यू द नोट्स एज वेल. और समझा भी दूंगी इसी लेक्चर में पूरे कि अफोरिज्म नंबर 1 आखिर बोल क्या रहा है. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. The physician's high and only mission is to restore the sick to health, to cure, as it is termed. तो दिस इज द aphorism जो सबको याद है, सबको पता है. ऑर्गेनन की बुक खोल के देखेंगे, फर्स्ट aphorism आपको मिल जाएगा. तो इसको थोड़ा सा जान लेते हैं कि हैनमन ने इस पूरे aphorism में हमें बताने का क्या ट्राई करा है. तो 4 important things of this aphorisms. First, that is physician. So Hahnemann tried to talk about who is the physician, whom we should call a physician, what is the mission of the physician, who is the sick person, and what is cure exactly. We are not going to suppress or palliate the patient until and unless it is needed. We will focus on the word cure here as well as during our practice. जब भी हम प्रैक्टिस करते हैं when patient comes to us, we try to cure the patient. फिर जैसे जैसे हमें हिस्ट्री में पता चलता है, हमें नेचर ऑफ द डिजीज समझ में आती है, देन वी विल डिसाइड कि हमें क्योर करना है या पैलिएट करना है. वी नेवर टॉक अबाउट सप्रेशन, वी नेवर थिंक अबाउट सप्रेशन ऑफ द डिजीज. सो व्हाट हैनमन टॉक्ड अबाउट इन दिस अफोरिज्म, लेट मी टेल यू. सबसे पहले उन्होंने बात करी है हु इज फिजिशियन. The Greek word that is physis, which means the nature. जो नेचर से मतलब नेचर से कोरिलेट करके आपको एक क्योर दे. द फिजिशियन who knows the laws and principle of nature and knows how to apply them, who has acquired knowledge and skills और टू प्रैक्टिस द मेडिसिन बाय अंडरगोइंग ट्रेनिंग एंड गेट अ लाइसेंस. ये तो हमारा एक डेफिनेशन हो गया कि जिसके पास लाइसेंस है, जिसके पास स्किल्स है, जिसके पास नॉलेज है और उस नॉलेज को वो कैसे अप्लाई करता है अपने पेशेंट्स को ट्रीट करने में. ही शुड अप्लाई हिज नॉलेज एंड स्किल टू prevent diseases, not even to cure the patient, not only to cure the patient. He should apply his knowledge and skills to prevent the diseases, to the preservation of health, to cure the disease and to ameliorate the suffering. ameliorate the suffering यानी कि palliation भी उसको आना चाहिए जहाँ पर ज़रूरत होती है. तो ये 4 जो क्वालिटीज़ हैं फिजिशियन की, जो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. फर्स्ट इज़ टू प्रिवेंट द डिजीज, सेकेंड इज़ द preservation of health, third is he should know how to cure the disease, and the lastly he should know how to ameliorate the suffering. If he knows that the patient is not curable, तो उसको पता होना चाहिए कि how he should palliate the case so that he can ameliorate and lower the suffering of the patient. The person who is efficient to bring back to the state of complete physical, mental and social well-being of the sick, जो health की definition है उस तक वापस लेकर आए, that person we call is physician. Secondly, he talked about the high and only. Why he used those words high and only? It should be the only thing, यानी कि जो फिजिशियन होता है उसका क्योर करना ही it should be the only thing in physician's mind. To restore the health of the sick, क्या चलना चाहिए दिमाग में कि कैसे मैं इसका हेल्थ को रिस्टोर करूं. And it should be the priority of the physician, because क्योंकि हैनमन के टाइम पे जब फिजिशियंस होते थे वो जिस तरह का प्रोसेस वो यूज करते थे ट्रीटमेंट में, ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड, ही वॉज डिससेटिस्फाइड विद द ट्रीटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट ड्यूरिंग हिज टाइम.
सो अकॉर्डिंग टू हिम फिजिशियन शुड नॉट डेविएट फ्रॉम हिज रियल पर्पस. क्या होता था, जो ब्रोसियस प्रिंसिपल है उसमें लीचिंग होता था, वेनस सेक्शंस होता था, है ना, परगेटिव्स देकर वॉमिटिंग्स करवाई जाती थी, तो उनको ये सब पसंद नहीं था. उनको ऐसा लगता था कि दिस इज़ नॉट द रियल ट्रीटमेंट. हाँ, तो अकॉर्डिंग टू हिम फिजिशियन शुड नॉट डेविएट फ्रॉम हिज रियल पर्पस, दैट ही शुड मेक द पेशेंट क्योर. No other thing should come into his way of treatment. Why he used the word mission, not aim, not objective. The other words are not used here. Only the word that is mission. इसको बहुत बहुत इम्पॉर्टेंटली देखना है. और ये वर्ड को जब हम नोट शॉर्ट नोट लिखेंगे तो ये वर्ड फिजिशियन वर्ड ये यूज़ होना चाहिए, इसका एलाबोरेशन होना चाहिए. you'll get a good marks. द वर्ड यूज्ड बाय जो हैनिमन ने अपने जर्मन एडिशन में यूज़ किया था वो था बेरफ. द वर्ड मिशन इज़ द एक्सीलेंट ट्रांसलेशन ऑफ द वर्ड बाय R.E. डजन. और बहुत सारे लोगों ने इसको ट्रांसलेट करके अलग अलग तरीके से यूज़ किया. किसी ने एम, किसी ने ऑब्जेक्टिव, किसी ने अलग अलग तरीके से. बट जो एक्सीलेंट मीनिंग था, मतलब जो होता है ना एकदम सिमिलिमम जैसे हम निकालते हैं, सिमिलिमम की तरफ अगर हम जाएं तो R.E. डजन ने बहुत ही अच्छा वर्ड यूज़ किया, दैट इज मिशन. इट इज़ अ मिशन बिकॉज इट नीड्स अ साउंड कमिटमेंट. वाई इट इज़ अ मिशन? बिकॉज इट नीड्स अ साउंड कमिटमेंट. हमारा ध्यान कहीं और इधर उधर नहीं होना चाहिए, हमारा माइंड डेविएट नहीं होना चाहिए, और हमें एक अनप्रेजुडाइज तरीके से पेशेंट को देखना चाहिए. इट इज़ अ स्पिरिट एंड अ डिवोशन फॉर ट्रीटिंग द पेशेंट. वी शुड बी डिवोटेड टूवर्ड्स treating the patient. The monetary gains are secondary, but the satisfaction felt in this job is a real reward. That Hahnemann is saying and try to say with the help of this aphorism. Other than being a competent physician, a physician should have a compassion for the patient. एक ह्यूमन फीलिंग भी होना चाहिए, इसीलिए कंपैशन होना चाहिए कि मुझे इसको ठीक करना है. द फिजिशियन शुड फील द पेन ऑफ द पेशेंट, ईदर दैट इज सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव. सेकेंड जो अगला वर्ड है दैट इज सिक. सिक कौन है? अ फेलो ह्यूमन बीइंग होज फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग इज डिस्टर्ब्ड. और ये जो डेफिनेशन है सिकनेस का, दैट इज ऑल्सो समवेयर रिलेटेड टू द डेफिनेशन जो WHO ने बताई है हेल्थ की. तो अ फेलो ह्यूमन बीइंग होज फिजिकल, mental and social well-being is disturbed. Somewhere there is a disturbance into the vital force, and that is causing the disturbance into the physical, mental and social well-being of the patient, who needs attention and help from the physician to bring him back to his healthy state. जिसको attention चाहिए ताकि वो अपने healthy state में वापस आ सके, that person we call as sick. The next thing is health and cure. What is the difference between the health and the cure? Health is a stable state of human being, and it remains as long as there is an equilibrium between the internal and external environment. जो internal मतलब हमारे अंदर का जो environment चल रहा है, whether that is some stress, some tensions, और जो कुछ भी हमारे अंदर चल रहा है, सम केमिकल एंड फिजिकल लोचास जो अंदर चलते रहते हैं, दैट शुड बी अकम्पनीड, दैट शुड बी in harmony with the external environment, which in turn results in harmonious functions of the body and the mind. जब हम अपने अंदर के environment को बाहर के environment के साथ harmony में रखेंगे तो ही हमारी body और mind जो है harmony में काम करेंगे. In this state we do not experience any abnormal sensations and disturbed functions and feel the overall ease. Healthy state पे तो हमें कोई परेशानी नहीं होती, कुछ नहीं होता है. पर जब हम बीमार पड़ते हैं और उसके बाद जब हम ठीक होते हैं और वापस उसी हेल्दी स्टेट में जाते हैं, बीमारी के बाद जो स्टेट आती है, दैट वी कॉल एज क्योर. क्योर इज द इराडिकेशन ऑफ ऑल द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ द डिजीज. सब कुछ चला जाना चाहिए, वेदर दैट इज मेंटल, फिजिकल एलिमेंट, सम पेन्स और एनीथिंग रिलेटेड टू द डिजीज विच इज कमिंग टू द पेशेंट, विच इज फेल्ट बाय द पेशेंट, वो सब चला जाना चाहिए. एंड ब्रिंग द ओरिजिनल हेल्दी स्टेट बैक, है ना. यही काम है ना फिजिशियन का कि वो अपने उस पेशेंट का जो हेल्दी स्टेट है उसको वापस लेकर आए. दैट वी कॉल इज अ क्योर. Cure is not merely relieving the symptoms or suppressing or masking the disease or substitute the disease with another disease. जो during the period of Hahnemann होता था कि वो वाला जिस सिम्टम के लिए पेशेंट फिजिशियन के पास जाता था वो तो चला जाता था, लेकिन उसके एक्सटर्नल में ऐड होके, क्योंकि बहुत सारी हेटेरोपैथिक मेडिसिन उसको दी जाती थी या आइसोपैथिक मेडिसिन दी जाती थी, जिसकी वजह से और ज़्यादा वो बीमार पड़ता था. जो सिम्टम वो लेके आया वो चला जाएगा. इसीलिए उन्होंने बोला है कि क्योर इज़ नॉट जस्ट रिलीविंग द सिम्टम्स और सप्रेसिंग और मास्किंग द सिम्टम्स जो पहले से ही मतलब
दिखाने के लिए कि ये तो ठीक हो गया है, उसको मास्क कर दिया, उसको सप्रेस कर दिया, लेकिन कोई और डिजीज ह्यूमन बीइंग के अंदर प्रोड्यूस होती है। एंड इट शुड नॉट बी लाइक दैट द सब्स्टिट्यूट द डिजीज विद अनदर डिजीज, कि आप पेशेंट आपके पास आया पेट दर्द के लिए या और आपने उसको कोई और डिजीज दे दी because of your heteropathic mode of treatment or isopathic or any other mode of treatment like that. और we should not palliate until and unless it is needed, जो वो आगे के aphorisms में बताएंगे palliation कहाँ पे ज़रूरी है. Cure should not be compromised of physical, psychological, social and spiritual well-being. It is possible by the, अब उन्होंने क्या बोला, it is only possible by the law of similia and can be achieved by fixed principle. Cure follows a definite pattern and it is defined in aphorism number 2, जो हम बताएंगे. Cure should follow a definite pattern, जो हैरिंग्स लॉ ऑफ क्योर में भी बताया हुआ है. तो एज इट इज टर्म्स का मतलब एक्सप्लेन बाय द नेचर एंड टोल्ड बाय द अथॉरिटीज़, जैसे ही मतलब जिस तरीके से हमको क्योर का या हेल्दी स्टेट का पता है, जो हमें बताया गया कि ये हेल्दी स्टेट होती है, ये क्योर होता है, ऐसे ही हमें मिशन रखना है. हाँ, एक फिजिशियन का यही मिशन होना चाहिए कि वो अपने पेशेंट को हेल्दी स्टेट में वापस लेके आ सके, उसको क्योर कर सके. एंड वेयर एवर इट इज़ नेसेसरी, इफ़ द पेशेंट नीड्स द पैलिएशन, आपको वो भी करना आना चाहिए. सो थैंक यू सो मच. दिस इज़ ऑल विद अफोरिज्म नंबर 1. इसके नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, मैं अपलोड कर दूँगी. और किसी को और भी कोई डाउट हो तो वो वहाँ पर भी पूछ सकता है. आप वीडियो के एंड में कमेंट्स भी पूछ सकते हैं, कमेंट्स देकर बता सकते हैं कि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, किसी भी चीज़ का आपको डाउट लगता है तो प्लीज़ यू आर फ्री टू आस्क एनीथिंग. थैंक यू सो मच.